ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ, ਟਾਈਪਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਅ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਫ ਦ ਵਰਕ ਡਨ by or against the force in moving a body only depend on the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed by the initial between the initial and the final position। की मतलब दोबारा फिर a force said to be conservative, force ਨੂੰ conservative ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ if the work done by against ਬਾਏ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਵਰਕ ਡਨ ਚਾਹੇ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਏ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਈ, ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਫੋਲੋਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਡਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ A ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ C ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਟਰੈਂਗਲ ਪਾਥ, 2 ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਥਰਡ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਡਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਏ ਪਾਥ 1 ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਏ ਪਾਥ 2 ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਏ ਪਾਥ 3 ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਏ ਬੋਡੀ ਓਵਰ ਐਨੀ ਪਾਥ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ A ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ A ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ B ਨਾਲ, ਚਾਹੇ C ਨਾਲ, ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਲੈਟ ਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਏ ਬੋਡੀ of mass m through a height ab is equal to h over a different path from A to B। हाँ जी, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ 3 ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 3 ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ। ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। 3 ਤਰੀਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅਰਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸੀੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਬੀਟਰਰੀ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਬੀਟਰਰੀ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, F.S ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ FS cos ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, W1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ mg, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, mg ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, h ਮੂਵ ਕਰਾਣਾ। cos ਕੀ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ cos 0 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1।
तो MGH इंटू 1 दैट इज़ MGH। फिगर 4.7b आ वाली shows the body being taken along a smooth inclined plane CB of height AB is equal to H। थोड़ा जिहा ने कीती है जिहड़ा B फिगर है आ नंबर जिहड़े गलत लगे हुए ने आ वाला जिहड़ा एक्सप्रैशन है वो हैगा इस केस का सॉरी जिहड़ा आ वाला फार्मूला कढ़िया अपना वो ए केस का है कि असीं सीधा बॉडी नूं ए पोजीशन तो बी पोजीशन ते ले गए सीधा उपर चक के ले गए खिच के। हुण आ बी पोजीशन आ वाली है बी जिहड़ी फिगर है आ वाली है जिहदे विच बॉडी नूं आपां इनकलाइंड प्लेन ते लेके गए। हुण बॉडी इत्थे है मान लो इस जगह के उपर है एफ फोर्स लग रही है बॉडी के उपर वेट किधर नूं लग रहा है बॉडी का नीचे नूं वर्टिकली वेट किधर हुंदा बॉडी का नीचे नूं हुंदा फिर जिन्ना एंगल इत्थे बनूगा उन्ना ही एंगल इस जगह ते बनूगा। आ बॉडी है इत्थे नॉर्मल डायरैक्शन होगी वेट दो भागों च डिवाइड हो गया कंपोनेंट वैक्टर नूं आपां दो भागों च डिवाइड कर लिया एक अलॉन्ग थीटा MG cos थीटा एक जिधर थीटा नहीं हैगा उहदे नाल 90 डिग्री का एंगल बना के इस नाल 90 डिग्री का एंगल बना के MG sin थीटा। हुण R ते MG cos थीटा ने जिहड़े वो ओपोजिट ने F ते MG sin थीटा ने जिहड़े ओपोजिट ने ठीक है। तो इस केस की है फोर्स इंटू हुण डिस्टेंस कितना मूव करांगे CB डिस्टेंस जिहड़ा असीं मूव करांगे कितना करांगे CB करांगे तो F डॉट CB FCB cos 0 डिग्री। हुण उरे cos 0 डिग्री क्यों लिया क्योंकि CB ते F दे विचाले दा एंगल तां 0 है आ जिहड़ा एंगल है वो तो हॉरिजेंटल नाल बन रहा है F ते CB इक्को डायरैक्शन च ने F की डायरैक्शन भी यही है तो CB की डायरैक्शन भी यही है तो cos 0 डिग्री। हुण F की वैल्यू की भरी है MG sin थीटा क्यों क्योंकि जिन्नी आ तो कैंसल हो गए एक दूजे नाल R ते MG cos थीटा। हुण ये फोर्स नीचे लेके आना चाहती है इनू MG sin थीटा ये वेट का कंपोनेंट नीचे लेके आना चाहता है तो जिन्नी फोर्स नाल नीचे नूं आ रहा है तो घट्टो घट्ट मैनू उन्नी फोर्स तो लानी पऊगी ना बॉडी नूं उपर ले जाने वास्ते। हुण एक बॉडी नीचे आ रही है इन्नी फोर्स नाल पर मैं चाहना कि बॉडी नीचे ना आवे बॉडी उपर जाए तो घट्टो घट्ट मैनू इन्नी फोर्स उहदी उल्ट डायरैक्शन च लानी पऊगी तो मतलब जिहड़ी मैं फोर्स लगाऊंगा वो MG sin थीटा के बराबर लाऊंगा घट्टो घट्ट। फिर CB किवें कढीए आपां sin थीटा इंटू CB हुण इत्थे जिहड़ा sin थीटा है उहदी वैल्यू पुट कीती है आ ट्रैंगल च ACB ट्रैंगल च ACB ट्रैंगल ACB sin थीटा काहदे बराबर हुंदा है sin थीटा बराबर हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की हुंदा है एंगल के सामने वाली साइड दैट इज़ AB हाईपोटेन्यूज आ वाली साइड करन जिन्हों बोलते हैं आपां CB। तो sin थीटा की वैल्यू भरती AB बटा CB CB नाल CB की हो गया कैंसल हो गया MG AB कितना है जी A तो B की हाइट कितनी है वो हैगी है H तो वैल्यू पुट करती W2H बराबर है MGH। देखो W1 भी कितना आया सी MGH W2 कितना आया MGH। हुण आपां तीजा केस लो जी आ वाला केस स्टेयर वाला केस। हुण आपां ये मान लिया कि हरेक जिहड़ी स्टेयर है उहदी हाइट है जिहड़ी वो H डैश है हरेक स्टेयर की हाइट है जिहड़ी वो H डैश है ठीक है जी। तो हरेक स्टेयर का जिहड़ा हॉरिजेंटल यही जिहड़ी हॉरिजेंटल लंबाई है वो X है। हुण देखो जिहड़ा वर्क डन किवें कढांगे आपां हुण वर्क डन दो हिस्से च होऊगा एक तो इन्ना चलण च एक इधर चलण च एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया एक हॉरिजेंटल तो W जिहड़ा 3 है वो बराबर है वर्क डन MGH डैश cos थीटा। हुण देखो आपां एक स्टेयर बना के गल करते हैं। हुण मैंने स्टेयर वाइज उपर जाना मान लो तो एक तो मैनू इधर नूं चलना पऊगा एक मैनू इत्थे तक पहुँचने वास्ते इधर नूं चलना पऊगा तो फोर्स कितनी लानी पऊगी मैनू उपर जाने वास्ते जिन्ना वेट है दैट इज़ MG। आ वाला डिस्टेंस है H डैश आ है X तो मेरा जिहड़ा वर्क डन आऊगा वो आऊगा एक तो वर्टिकल वर्क वर्टिकल डायरैक्शन दे विच प्लस हॉरिजोंटल डायरैक्शन च।
वर्टिकल डायरैक्शन च कितना होगा, फोर्स कितनी है mg, कितना मूव करना है उपर नूं, एक स्टैप की उचाई कितनी है एच डैश। कॉस कितना बनूगा जी, देखो फोर्स भी इधर नूं लगूगी, मूव भी असीं उपर नूं कर रहे हैं, तो कॉस हो गया 0 डिग्री। हॉरीजोंटल वर्क च फोर्स तो उन्नी है mg, कितना मूव करना अपने एक्स, कॉस थीटा कितना लगूगा। हुण तुसीं देखो फोर्स तो लग रही है उपर नूं क्योंकि मैं उपर नूं जाना है, पर मैं मूव किधर नूं कर रहा हॉरीजोंटल डायरैक्शन च। एंगल कितना बन गया, कल वाला केस 90 डिग्री, तो ये बन गया mg h डैश इंटू 1, ये बन गया mg x इंटू 0, जानी कि mg h डैश रह गया, आ भाग हो गया किसी चीज़ को 0 नाल गुणा करांगे तो 0। ये एक स्टैप का वर्क हो गया। हुणे मान लो अपने कोल कितनियां स्टैप ने, n स्टैप ने, कितनियां स्टैप ने n, तो मल्टीप्लाई बाय n, तो टोटल वर्क डन जिहड़ा W3 आऊगा वो mg h डैश इंटू n। हुण जिहड़ा ये mg n इंटू h डैश ये की बन गया, देखो एक जे आपां कहिए भी एक स्टैप की लंबाई 1 फुट है, तो टोटल हैगियां ने 12 स्टैप, टोटल हैगियां ने 12 स्टैप, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 1 फुट, एक स्टैप की लंबाई है, तो टोटल होगी 12 गुणा 1 दैट इज़ 12 फुट। मतलब जो एन नूं तुसीं एच डैश नाल मल्टीप्लाई करोगे तो की बन जूगा, वो टोटल लंबाई ही बन जूगी जिन्नी उचाई है mgh। समझो इस केस वर्क डन जो दो भागों के होया, एक mg h डैश कॉस 0 वर्टिकल वर्क डन है, एक mg x कॉस 90 हॉरीजोंटल वर्क डन है। हॉरीजोंटल वर्क डन है जोड़ा वो 0 हो जाऊगा क्योंकि एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट, कल आप कंडीशन की सी 0 वर्क की, जो फोर्स तो डिसप्लेसमेंट के विचाले एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन की हो जाता है 0 हो जाता है। तो साडे कोल कल्ला वर्टिकल वर्क डन बच गया जिहदे कॉस 0 डिग्री है, दैट इज़ एक स्टैप का वर्क डन n आ जाऊगा, जिन्ने स्टैप ने उन्हें नाल मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क डन आ जाऊगा। n इंटू h डैश की बन गया, उसकी टोटल लंबाई बन गई, टोटल हाइट बन गई दैट इज़ h। तो 3 केस कर लिया हुण तक, तिन्नां दे विच जिहड़ा आंसर की आ रहा है mgh, चाहे मैं पहले रस्ते नाल सीधा चक के ले गया उपर, चाहे दूजे स्टैप च इनकलाइंड प्लेन तो गया, चाहे तीजे स्टैप च मैं पौड़ियां राही गया। फिर चौथे च देखो जी, हुण चौथे दे विच की है साडे कोल कोई आरबीट्ररी रस्ता है, कोई सीधा रस्ता नहीं, उन्होंने किवें कैलकुलेट करिए। हाइट आप एच ही लेके जाना उपर तक, ठीक है, जिग जैग पाथ है आप बोलांगे। द पाथ कैन बी सपोज टू मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनेटली स्मॉल हॉरीजेंटल डिसप्लेसमेंट से dx। आपां की मान लिया कि थोड़ा जिहा हिस्सा है जिहड़ा वो हॉरीजोंटल हैगा, तो ये इस तरह जिग जैग है, आपां थोड़ा जिहा हिस्सा की मान लिया भी ये इन्ना जिहड़ा हॉरीजेंटल वर्क डन dx जिहड़ा हैगा हॉरीजेंटल है, एंड वर्टिकल डिसप्लेसमेंट dh। हॉरीजोंटल जिहड़ा इधर नूं हैगा वो dx है, तो जिहड़ा वर्टिकल है वो कितना है dh है। थोड़ा जिहा हिस्सा मान लिया, जिस हिस्से से आप मान के चल रहे हैं भी इत्थे जिहड़ी उचाई है बिल्कुल सीधी है, तो इधर नूं आपां थोड़ा जिहा उन्नी उचाई वास्ते आपां नूं इन्ना क मूव करना पऊगा इस पासे नूं। तो तुहानूं पता है कि जिहड़ा हॉरीजेंटल वर्क डन है ये तो 0 आ जाऊगा, इधर नूं मूव करने वास्ते हॉरीजेंटल मूव करने वास्ते जिहड़ा वर्क डन आऊगा 0 आऊगा। क्यों आऊगा, आही केस बनूगा, एंगल बन जूगा 90 डिग्री का। जिहड़ा वर्क डन वर्टिकल करांगे आपां थोड़े जे डिस्टेंस का, वो की बनूगा mgh एच की थां ते की लवांगे हुण आपां समॉल हाइट dh, एंगल कितना 0 डिग्री। हुण मूहरे की लाया समेशन लाया, समेशन का मतलब की हुंदा छोटे छोटे हिस्सों का जोड़, भी आपां पूरे रस्ते नूं छोटे छोटे हिस्सों च डिवाइड कर लो, पूरे रस्ते नूं छोटे छोटे भागों च डिवाइड कर लो, कल्ले कल्ले भाग का वर्क डन कढ के सारिਆਂ ਦਾ की कर दो जोड़ कर दो। तो जो आप सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करांगे तो देखो की बनूगा समेशन mgdh cos 0 cos, तो दूजा की सीगा समेशन mgdx cos 90, तो आ तो हिस्सा हो गया 0 क्योंकि cos 90 0 होंदा है। mg कॉन्स बाहर आ जाऊगा क्योंकि कॉन्सटेंट है, cos 1 का मुल cos 0 का मुल 1 होंदा है, रह गया समेशन dh, सारियां छोटियां छोटियां उचाइयां का जोड़ कितना आऊगा टोटल उचाई दैट इज़ h। तो मतलब चौथी बारी भी जो अपने वर्क डन कढ़िया है वो की आ गया mgh। सो दिस मीनस दैट कि जी ग्रैविटेशनल फोर्स है, जो आप ग्रैविटेशनल फोर्स के डायरैक्शन के चाहे उल्ट, इत्थे आप उल्ट जा रहे हैं,
अपने वर्क डन फाइंड किया जिस इनीशियल तो फाइनल पोजीशन सेम है, जिथों मैं चक्या तो जिथे मैं जाना वो जगह सेम है, उन्होंने दूरी सेम है, पर रस्ते का तरीका अलग अलग सी। चारे वारी जिहड़ा आंसर आया वो MGH आया। दैट इज़ जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स है वो कंजरवेटिव फोर्स है। इस तो इलावा होर की एग्जाम्पल बनदियां ने, फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, जिवें एक स्प्रिंग हुंदा जो इलास्टिक फोर्स हुंदी है वो वाली। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलैक्ट्रिक चार्ज, दो चार्ज एक दूजे नूं खिच्चदे ने जां परां धक्कदे ने, सेम चार्ज रिपैल ईच अदर ते ओपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मैगनैटिक फोर्स बिटवीन द टू मैगनैटिक पोल, चाहे वो रिपल्शन दी है चाहे वो अट्रैक्शन दी है। These the last two forces called central force as they act along the line joining the center of two charged or magnetic bodies. Thus all the central force are conservative force. जिहड़ी पहली इलास्टिक फोर्स है, ठीक है, तो वो तो सेंट्रल फोर्स नहीं हैगी, सेंटर टू जिहड़ी आ दो फोर्स ने इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ते मैगनैटिक फोर्स, इनू सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लगदियां ने ये बॉडी दे एक बॉडी दे सेंटर तो दूजी बॉडी दे सेंटर तक लगदियां ने, तो इस करके इन्होंने बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो इन्हें कहा जिन्नियां सेंट्रल फोर्स होंदियां ने सारियां कंजरवेटिव होंदियां ने। इहदियां प्रॉपर्टीज़ की ने, इंपॉर्टेंट ने, की प्रॉपर्टीज़ ने। पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय और अंगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स, चाहे द फोर्स की डायरैक्शन ज़्यादा उल्ट। इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन ओनली डिपेंड कित्थे करदी है, फाइनल एंड इनीशियल एंड फाइनल पोजीशन ते डिपेंड करदी है, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड इन मूविंग द बॉडी। वर्क डन बाय और अंगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ। सैकेंड वही पॉइंट हो गया, ओनली डिपेंड अपॉन द इनीशियल एंड फाइनल पोजीशन। तीजा, वर्क डन बाय और अंगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू ए राउंड ट्रिप, मतलब क्लोज्ड पाथ, इज ऑलवेज जीरो। ये इंपॉर्टेंट इहदा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेकर इत्थे तां आपां बॉडी नूं एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ते लेके गए सी, जे बॉडी दी आपां राउंड ट्रिप करा दईए, मतलब जिथों चले सी घूम के असीं उत्थे आ जाइए। राउंड ट्रिप का मतलब ये नहीं कि गोल चक्करे होवे, राउंड ट्रिप एवें भी हो सकती है, राउंड ट्रिप एवें भी हो सकती है, मतलब इनीशियल तो फाइनल पोजीशन की है सेम है, जिथों चले उत्थे ही पहुँचे, तो जिहड़ा वर्क डन आऊगा टोटल वो जीरो आऊगा। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए राउंड ट्रिप, जां मूविंग ए बॉडी इन राउंड ट्रिप, टोटल वर्क डन की आऊगा जीरो आऊगा। क्यों आऊगा जीरो? सोचो, क्योंकि वर्क डन किहदे उपर डिपेंड कर रहा है, इनीशियल तो फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। हुण ये इनीशियल पोजीशन भी उही है, फाइनल पोजीशन भी उही है, जिथों चले उत्थे पहुँच गए, कहता मतलब वर्क डन की आऊगा जीरो आऊगा। एग्जाम्पल के तौर पर असी ग्रैविटेशनल फोर्स की गल करिए जिवें पहलां कीती है कि असी बॉडी नूं पहलां ए पॉइंट तो बी पॉइंट ते चक के ले गए, ठीक है, फिर आपां बी पॉइंट तो ए पॉइंट ते लियाए। पहलां जो आपां उपर लेके गए हाँ उन्होंने आपां लवांगे वर्क डन नैगेटिव। क्यों? याद करो कल आपां कीता सीगा, ग्रैविटेशनल फोर्स की डायरैक्शन नीचे नूं हुंदी है, बॉडी आपां लेके गए उपर नूं, ग्रैविटेशनल फोर्स के उल्ट एंगल हो गया 180 डिग्री, तो जो एंगल 90 तो वड्डा हुंदा तो वर्क डन नैगेटिव हुंदा। तो जो असी उपर तो नीचे लेके आवांगे तो फोर्स भी नीचे नूं लगूगी, आ भी असी नीचे नूं रहे हैं, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। तो जो 90 तो छोटा हुंदा तो वर्क हुंदा पॉजिटिव। तो हुण देखो ए तो बी ही गए, बी तो ए ही वापस आए, तो जे पहला वर्क डन ए तो बी वो इन्ना सी, दूजा वर्क डन बी तो ए एन है, दोने वर्क डन बराबर ने, क्योंकि कंजरवेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, कंजरवेटिव फोर्स सिर्फ इनीशियल तो फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, तो दोने सेम ने, तो दोने वर्क डन ही बराबर ने। डबलयू ए बी बराबर है माइनस बी ए, जां डबलयू बी ए बराबर है माइनस डबलयू ए बी। तो जे नूं मैं इधर चक लिया वा, इधर चक लिया वा, तो की बन जूगा डबलयू ए बी प्लस डबलयू बी ए इज इक्वल टू की आ गया जीरो। टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप, जिथों गए उत्थे वापस आए, की हो गया टोटल वर्क डन जीरो। सो ये इंपॉर्टेंट इहदा पॉइंट है। सो इन फैक्ट वर्क डन इन
In fact, work done in taking a body A to B is stored in the form of potential energy। जब आप A तो B तक लेके गए, ऊंचाई ते ले गए ना, तो बॉडी अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा होगी। दिस इट इज़ द एनर्जी विच इज़ स्पेंट इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम B to A। हुण देखो तुहानूं पता है थोड़े घरे टैंकी लगी हुई है पानी की, तुसीं सवेरे पानी भरदे हो तो मोटर लगा के भरदे हो, तो टैंकी भरन वास्ते मोटर लगानी पैंदी है, पर जो टैंकी खाली करनी है नीचे घर दे विच टूटियां छड्डणीਆਂ ने, फिर मोटर नहीं लानी पैंदी, फिर पानी अपने आप नीचे आंदा है। क्यों? क्योंकि जो मोटर चला के मैं वो पर वर्क डन किया है पानी के उपर, वो जमा हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उही एनर्जी जो असीं टूटी नीचे दोबारा खोलांगे पानी नूं दोबारा टैंकी तो नीचे ले आती है, तो मतलब पहला एनर्जी जमा हुई, बाद वो एनर्जी खर्च होगी, तो टोटल एनर्जी की होगी 0। दस ओवर ए राउंड ट्रिप A to B एंड अगेन वापस B to A, नैट वर्क डन की हो गया 0 हो गया। दूजी साडे कोले आ गई जी नॉन कंजरवेटिव फोर्स। क्लीयर है, जो कंजरवेटिव पता लग गई तो नॉन कंजरवेटिव भी पता लग जूगी। किमें? फोर्स हैड टू बी नॉन कंजरवेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बिटवीन द टू पोजीशन। वो हैगी सी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, यही कि डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। तो ये अपने को एग्जाम्पल देखो दिखाया भी A तो B गए असी, एक मैथड है, सैकेंड वे है, थर्ड वे है, तिन्ने वे का वर्क डन की है अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, तो ये तिन्ना दे विच जिहड़ा वर्क डन है पाथ ते डिपेंड कर रहा है। नैट वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ, ये जिवें उहदे विच की सीगा कि क्लोज्ड पाथ वास्ते नैट वर्क डन की सी 0 सी, ये 0 नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये देखो इत्थों आप मान लो आ ले लो A तो B गए, दूजे रस्ते राही गए, तीजे रस्ते राही वापस आए। हुण दूजे रस्ते जाण वास्ते वर्क डन हो रहा है, तीजे रस्ते विच आण वास्ते वर्क डन हो रहा है। जे तां जाण दा वर्क डन ते आण दा वर्क डन सेम हुंदा फिर तां आंसर आ जांदा 0। पर हुण आपां उपर गल कीती है कि 3 रस्तियां चों जाण दा अलग अलग वर्क डन है, तो मतलब दूजे रस्ते का वर्क डन हो रहा है, तीजे का हो रहा है। जे दूजे राही जावांगे, तीजे राही वापस आवांगे, तो ये पूरा पूरा बराबर नहीं हैगा। ठीक है, इसलिए साडे कोले कुछ ना कुछ की बचूगा, नैट वर्क डन बचूगा, कोई ना कोई ज़्यादा होगा, या तो दूजे का ज़्यादा हो या तीजे का ज़्यादा हो। तो साडे कोले क्लोज्ड रस्ते विच वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं हुंदी। तो ये वास्ते एग्जाम्पल किहड़ी ने, एक तो हैगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक विस्कस फोर्स जो लिक्विड्स के विचाले लगती है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बॉडी इज मूवड फ्रॉम पोजीशन A टू अनदर पोजीशन B ऑन ए रफ टेबल, work done against the friction force shall be depend upon the length of the path A and B, also on the position A and B. Further, if the body is brought back to initial position A on the same path, work done has to be done against the frictional force which opposes the motion always. Hence, net work done against the frictional force in moving a body over a round trip is not 0। ठीक है, तो यानी कि है कि असीं बॉडी नूं पहलां A तो B तक लेके गए रफ टेबल के उपर, तो वर्क डन किया गया फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, तो वो डिपेंड करूगा लेंथ ऑफ द पाथ के उपर भी कितने तक लेके गए A तो B तक। जे दोबारा वापस लेके आवांगे A ते, ठीक है, सेम रस्ते के उपर तो फिर सानूं कुछ काम करना पऊगा अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो कि वह रोक उन्होंने अपोज कर दी है मोशन नूं। तो नैट वर्क डन जिहड़ा हैगा अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग ए बॉडी राउंड ट्रिप जिहड़ा हैगा कदे भी वो 0 नहीं होना। तो कितना आऊगा 2W आऊगा। मतलब पहला असीं लेके गए A तो B तां भी W वर्क करना पिया, जो वापस लेके आए B तो A तां भी W वर्क करना पिया। ठीक है, सो टोटल वैल्यू ऑफ इनिशियल एनर्जी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 2W। नैट कदे भी 0 नहीं आता। वर्क डन बाय और अगेंस्ट द नॉन कंजरवेटिव फोर्स अपीयर इन सम अदर फॉर्म, जिहड़ा वर्क डन है वो किसी होर फॉर्म ऑफ एनर्जी बदल जूगा, जिमें साउंड च बदल जूगा, हीट च बदल जूगा, ठीक है, लाइट च बदल जूगा। सो वैन आल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर टेकन इन टू अकाउंट, जे सारी एनर्जी नूं आपां ध्यान च रखीए तो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू, वो हमेशा ही लागू होंदा है। ये याद रखना है, किसी भी वर्क दे विच एनर्जी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड होंदा है। एनर्जी वो की है, एनर्जी कैन नैवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी नूं ना तो असीं पैदा कर सकते ना खत्म कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ही ट्रू होंदा है, बस सिर्फ सानूं ध्यान की रखना होंदा है कि एनर्जी किहड़ी फॉर्म दे विच बदली है। ठीक है, जिवें आपां इत्थे कहा है कि असीं पहला बॉडी नूं A तो B पोजीशन ते लेके गए, फिर B तो A ते वापस लेके आए, वर्क डन कुछ ना कुछ बाकी बच गया। तुसीं कहोगे वर्क डन बाकी बच गया, फिर कित्थे रह गया, वो जो एनर्जी जमा होगी बॉडी च, असीं कहांगे नहीं, क्योंकि जो वर्क डन सीगा वो साडे कोले साउंड के रूप दे विच कन्वर्ट हो गया एनर्जी, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी आपां कर चुके पहले यूनिट दे विच। वर्क ते एनर्जी एक दूजे च इंटर कन्वर्टेबल ने।
ठीक है। तो वर्क जिहड़ा है एनर्जी च कन्वर्ट होंदा, या साउंड च कन्वर्ट हो जाऊगा, या हीट च कन्वर्ट हो जाऊगा। जो आप दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होंदी है, तो हीट पैदा हो जाती है। ठीक है। फिर अगे साडे कोल आ गया जी पावर। पावर की चीज़ होंदी है? तो पावर का मतलब होंदा है शक्ति, जिन्होंने पंजाबी शक्ति कहने हैं। तो पावर किवें पता करते हैं? रेट एट विच वर्क इज़ डन बाय इट। किसी भी मशीन या किसी बंदे की पावर की होंदी है? रेट एट विच वर्क इज़ डन बाय इट, भी किन्नी दर नाल, किन्नी स्पीड नाल वो काम करदा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक मैं दो बच्चों को कह देना कि तुसीं बेटा 100 अंब तोड़ने, 100 अंब तोड़ने ने। ठीक है। जां असीं कह दिंदे कि एक पौड़ियां ने, दो बच्चे ने, उन्होंने बारी बारी कहना कि तुसीं पौड़ी जिहड़ी हैगी 20 वारी उतरनी ते चढ़नी है। तो पहला बच्चा जिहड़ा हैगा वो 20 वारी पौड़ी उतर या चढ़ जाता 10 मिनट दे विच। दूजा बच्चा उसे पौड़ी नूं 20 वारी उतरदा ते चढ़दा हैगा 15 मिनट दे विच। तो पहले बच्चे ने एक उही काम, सेम काम नूं जल्दी करता, दूजे बच्चे ने उही काम जिहड़ा हैगा उहनूं काम करन च ज़्यादा टाइम लाया। तो मतलब पहले दी पावर ज़्यादा है, दूजे दी पावर घट है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करन दी जिहड़ी स्पीड है, दर है, उसनूं असीं वर्क कहने आ। ठीक है जी, उसनूं असीं कहने आ वर्क। तो हुण वर्क इज इक्वल, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज़ वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर का फार्मूला की हो गया? किन्ना काम कीता, किन्ना समा लग्या बटा किन्ना समा लग्या। तो पावर ऑफ ए बॉडी मैयर हाउ फास्ट इट कैन डू वर्क। पावर की पता करता है कि कोई बॉडी किन्नी तेज़ी नाल काम कर सकती है। जेकर कोई बॉडी घट समय दे विच सेम काम करूगी तो उसकी पावर ज़्यादा है, जे वध समय च करूगी तो पावर घट है। द पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, हुण ये तो हो गया, एक तो होंदा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। जे एक समय ते भी काम चल रहा है उस दौरान किन्नी पावर है, एक पॉइंट खास पॉइंट ते किन्नी है, तो उन्होंने बोलांगे कि थोड़े जे समय च किन्ना काम कीता। वर्क डन इन समॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि समॉल इंटरवल च असीं किन्ना काम कीता। ठीक है। एट इंस्टेंट का मतलब होंदा है, एट इंस्टेंट मतलब एक पल, जिवें 12:01 पूरे 12:0 तो लेके 12:02 तक किन्ना काम कीता, तो बोलांगे पावर एट इंस्टेंट। तो वो होगा स्माल वर्क डन टू द स्माल टाइम इंटरवल। ठीक है। फिर आपको पता है कि DW का फार्मूला अपने को की है? स्माल वर्क डन का फार्मूला की है? फोर्स इंटू द डॉट प्रोडक्ट डिसप्लेसमेंट। तो पावर की बन जूगी? पावर का फार्मूला की बन जूगा? उपर की है DW, नीचे की है DT। तो उपर बन जूगा F डॉट DS अपॉन DT। ठीक है जी। हुण जिहड़ा ये DS अपॉन DT की हुंदा है, याद करो यूनिट नंबर 2, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो की चीज़ होंदी है? वेलोसिटी। तो इत्थे की आ जाऊगा V। तो F डॉट V, तो पावर का जिहड़ा फार्मूला बन गया दैट इज़ F डॉट V। तो पावर असीं लिख सकते हैं F डॉट V। तो पावर कैन बी एक्सप्रैसड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। जे एंगल थीटा विचाले तो की बन जूगा F डॉट, हटा के की लाने होने आपां डॉट प्रोडक्ट की याद करो, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो की बन जूगा FV cos थीटा। जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री कितना होंदा? 1। तो आंसर आ जाऊगा FV। ठीक है। पावर है जिहड़ा ये भी दो स्केलर राशियां दी रेशो है, रेशो ऑफ द टू स्केलर क्वांटिटीज़, एक W एक T। वर्क भी स्केलर आप कल किया सी, टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी की है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो इस करके आप काहदे च लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट च। डॉट प्रोडक्ट हमेशा किहदा लिखा जाता है? डॉट प्रोडक्ट का आंसर की आंदा होंदा हमेशा? स्केलर। ठीक है। फिर आ गया डिमेंशनल फार्मूला। डिमेंशनल फार्मूला उपर की है वर्क का? वर्क का होंदा है ML2T - 2। नीचे की है? टाइम। नीचे आ गया MOV LOV, उपर T पहला -2 पावर हैगी है, ये उपर पावर कितनी है? 1। ये प्लस की पावर है, उपर जाऊगी तो -1 हो जूगी। तो बन गया ML2 -2 -1 -3। ये साढ़े को बन गया, इसका डिमेंशन फार्मूला बन गया। फिर आ गई यूनिट। यूनिट की बनूगी? ये उपर की है वर्क। वर्क की यूनिट जी होंगी है जाउल होंगी है। टाइम की यूनिट हैगी सैकेंड, तो है जाउल पर सैकेंड, पर यदा आप नाम बोल दें वाट, WAT वाट। ठीक है। तो 1 वाट कदों होगी? पावर 1 वाट कदों होगी? जेकर वर्क हो 1 जाउल तो टाइम हो 1 सैकेंड। इफ ए बॉडी डू 1 जूल वर्क इन 1 सैकेंड,
कि जेकर एक कोई बॉडी है जिहड़ी 1 जूल काम करे 1 सैकेंड दे विच, दैन पावर ऑफ द बॉडी सैट टू बी 1 वाट, तो उस बॉडी की जिहड़ी पावर है वो कितनी होगी 1 वाट होगी। तो यह समॉलर यूनिट है, वड्डी यूनिट होगी किलो वाट। किलो मीनस 1000, तुहानूं दस्सिया सी पहले यूनिट दे विच, किलो मीनस 1000, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 वाट। मैगा, मैगा मतलब 10 की पावर 6, मतलब 10 लाख वाट। ठीक है जी। तो ग्रैविटेशनल यूनिट की होगी, हुण ग्रैविटेशनल यूनिट आपां वर्क की कीती सी, तो ये भी कर सकते हैं आपां। तो इत्थे की साडे कोल जाउल, जाउल की थां ते याद करो कल की कीता सी आपां ने, किलोग्राम मीटर सीगा, कल की कीता सी आपां ने किलोग्राम मीटर। तो ग्रैविटेशन यूनिट ऑफ द एस पावर इज़ किलोग्राम फोर्स मीटर पर सैकेंड। देखो जाउल सीगा कल, 1 जाउल कल बराबर सी किलोग्राम, 1 जाउल ने सॉरी, जाउल की थां ते आपां जो ग्रैविटेशन यूनिट ली सी उपर ली सी किलोग्राम मीटर। तो किलोग्राम मीटर काहदे बराबर सीगा, किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर, किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर। तो इत्थे पावर की यूनिट की बनूगी किलोग्राम फोर्स मीटर, जाउल की थां ते आ गया ना, जाउल की थां ते आ गया किलोग्राम फोर्स मीटर, किलोग्राम फोर्स मीटर। सैकेंड इनवर्स एज इट इज़, जाउल की थां ते किलोग्राम फोर्स मीटर, सैकेंड की जगह ते सैकेंड एज इट इज़ आ गया। तो ये SI यूनिट होगी। CGH की होगी ग्राम फोर्स सेंटीमीटर पर सैकेंड, पर यह इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं हैगी। अपनी मेन इंपॉर्टेंट यूनिट आ वाली है वाट। इनू आप याद रखना है कि 1 वाट कदों होगा, इफ ए बॉडी डू 1 जूल वर्क इन 1 सैकेंड। एक जी होर अपने को चलती होंगी, थोड़े ट्रैक्टर लेके आने हो, ट्रैक्टर तो होंगे इन्ने हॉर्स पावर है, तो 1 हॉर्स पावर काहदे बराबर होंदा है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर कहने 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट इनू दे बराबर होंदा 1 हॉर्स पावर। सो ये साडे कोल की है, ये जी हॉर्स पावर यूनिट है वो असीं आटोमोबाइल, मोटर बाइक वगैरह की जी पावर दस्सण वास्ते आम तौर पर यूज़ करते हैं भी किन्ने हॉर्स पावर दी आटोमोबाइल है, कार है, जां किन्ने हॉर्स पावर का मोटरसाइकिल है, किन्ने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ठीक है, हुण साडे कोल एक पावर कंजप्शन दे रखी है, एवरेज पावर कंजप्शन इन सम कॉमन एक्टिविटीज़। जो अपनी हार्ट बीट होंदी है तो 1.2 वाट की पावर वो वास्ते चाहिए है। स्लीप करते हुए 75 वाट, स्लो वॉक करते हुए 200 वाट, बाईसाइकिल करते हुए चलाते हुए 500 वाट। फिर साढ़े को आ गया जी एनर्जी। एनर्जी बड़ा कॉमन जा टॉपिक है, बड़ी छोटिया क्लासा तो करते आ रहे हैं। एनर्जी की डेफिनेशन की होंगी है, द कैपेसिटी और अबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। जो भी चीज़ सानू वर्क करने के काबिल बनाती है उस चीज़ को असीं की बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी और अबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी दी बहुत सारिया फॉर्म्स ने, जिस फॉर्म से सानू ये जी एनर्जी वो अवेलेबल है। हीट, कनैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मकैनिकल एनर्जी, कैमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, होर बहुत सारिया जिहड़ियां फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ने जिहड़ियां साडे कोले अवेलेबल ने। एनर्जी की यूनिट आपां नूं पता है जाउल है, SI यूनिट है, जिहड़ी CGS यूनिट है वो अर्ग है साडे कोले। डिमेंशनल फार्मूला M1L2T-2 है। तो एनर्जी ने कुछ होर यूनिट भी चलदियां ने कॉमन यूनिट, अर्ग, कैलोरी, हीट वास्ते जिहड़ी असीं आम तौर पर कैलोरी यूज़ कर लैंदे आ। इलैक्ट्रीकल एनर्जी वास्ते किलोवाट आवर, जिन्होंने आपां कहने 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर दैट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। इलैक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी वास्ते आपां जां कनैटिक एनर्जी वास्ते आपां इलैक्ट्रॉन वोल्ट जिहड़ी एनर्जी है वो यूनिट आपां यूज़ कर लैंदे आ। पर आपां कीता सी कि SI सिस्टम दे विच आपां एक फिजिकल क्वांटिटी वास्ते एक तरह की एनर्जी की यूनिट ही आपां यूज़ करते हैं। सो अज वास्ते जिहड़ा हैगा ये काफ़ी है। बाकी जिहड़े टाइप्स ऑफ एनर्जी ने आपां कल नूं करांगे। तो इस लैक्चर नूं चंगी तरह देख लो, बार बार 2 बारी 3 बारी जब तक तुहानूं समझ नहीं आउंदा हैगा। थैंक यू।